Hello, all my dear students. As we all know that CA Foundation exams are around the corner, and today we are standing in the month of June. So I just hope that you all have finished studying all your CA Foundation syllabus. So now it is high time that we start with our revision. So what is the purpose of my lecture today? Let me come to that. You must have already finished studying your English syllabus particularly, okay, that is also known as BCR. But today I want to revise certain topics of English syllabus so as to make it easy for you. So I have put it on YouTube so as to make it little easy for you and also so that you can refer to it and revise your syllabus multiple times. Now, if you go to see, your CA Foundation English syllabus comprises more of writing skills. So ICAI has given a lot of importance on your writing skills such as précis writing, memo writing, circular writing, article writing, formal emails, formal letters, all these things. So if you look at all these things at once, you may find it a little bit confusing as to the format. Okay, so किसका format क्या है, इसमें थोड़ा बहुत confusion हो सकता है, and that is exact reason why I prefer to do this revision lecture with you all. So let us start with our English revision with this chapter which is known as précis writing. So first of all, coming to the pronunciation of this word, it is called as précis. Okay, this word has been derived from a French word. Okay, so S is silent over here and we pronounce it as précis. Now, if I come to the dictionary meaning of précis, it means a summary, an abstract, or a gist of a given text or a speech is known as a précis. Gist means the substance of a given paragraph, the essence of a given paragraph. So this is exactly what we have to do in a précis writing. Now, if you look at this slide, précis is nothing but it is the shortening of a text in your own words. That is called as a précis writing. So basically a text will be given to you, a paragraph will be given to you, and you have to shorten that paragraph in your own words, and that is what we call as précis writing. The term is derived from the French word, as I have said, which means precise. Thus, précis will give you an accurate and concise description of the main idea, whatever has been contained in the text, so as you convey that without losing its meaning. It is nothing but the gist of a passage. मैंने आपको कहा है gist का क्या मतलब है? Gist means the substance of that passage, the essence of that passage. Okay, and précis has to be written in such a way that it covers all the essential points, all the ideas in that main original passage. Now, आप लोग पूछोगे कि what is the difference between a précis and a summary? précis जब हम लिखते हैं तब summary ही तो लिखते हैं. So let me tell you, my dear students, it is not like that. A précis is something which is different from a summary. Now, how is it different? So the first and the foremost difference between a précis and a summary is that précis जो है, it is a brief statement of a piece of writing, such as a report, an article, or a chapter from the book. Whereas a summary is a short account of longer pieces of work, such as a thesis or a novel. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक कोई नॉवल ले रही हूँ और उस नॉवल का पूरा समरी अगर मैं लिख रही हूँ इन माई ओन वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एज अ समरी राइटिंग. ऑन द अदर हैंड, उस नॉवल में से सिर्फ एक चैप्टर मैं अगर उठा रही हूँ और उस चैप्टर का मैं समरी लिख रही हूँ इन माई ओन वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एज अ précis राइटिंग. Second difference between a précis and a summary is that précis जो है, it follows the order and proportion of the original text, whereas summary is free to change the order and proportion if you wish to do so. So for example, अगर मैं किसी एक पैसेज का précis लिख रही हूँ तो मुझे उसी ऑर्डर में उसका précis लिखना पड़ेगा, इन दी ऑर्डर विच इज गिवन इन दी ओरिजिनल टेक्स्ट. मैं उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकती हूँ. whereas समरी में मैं किसी भी ऑर्डर में अपना समरी लिख सकती हूँ. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इफ यू हैव
द रिलीजियस बुक भगवत गीता। तो भगवत गीता का अगर मुझे समरी लिखना है तो भगवत गीता का समरी मैं आपको 5 मिनट में या 10 मिनट में ओके आपको बोल के समझा सकती हूँ, या इफ आई हैव टू राइट इट इन अ टेक्स्ट आई विल राइट द एंटायर समरी ऑफ भगवत गीता इन से 5 to 6 पेजेस एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज अ समरी। बट भगवत गीता में से कोई एक चैप्टर अगर मैं उठाती हूँ और उसका अगर मैं समरी लिखने जाती हूँ तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिसे। ओके, सो आई टोल्ड यू सेकेंड डिफरेंस ये है कि अगर मैं समरी लिखती हूँ तो पूरा भगवत गीता का समरी जो है वो मैं 1 या 2 पेजेस में लिख सकती हूँ, बट अगर मैं प्रिसे लिख रही हूँ तो प्रिसे में मुझे ऐसा नहीं करने मिलेगा। I have to follow the order, I have to follow the proportion of the original idea. Next difference is that Prisse will only state the thoughts of the original text, whereas the summary writer is free to interpret the material and he is free to comment on it. इसका मतलब होता है that अगर मैं प्रिसे लिख रही हूँ तो वहाँ पे मुझे अपने कोई थॉट्स, अपने कोई आइडियाज प्रेजेंट करने की स्कोप नहीं है, whereas if I am writing a summary I am free to interpret that particular book, that particular whatever text it is in my own words. For example, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे मैं भगवत गीता का समरी लिख रही हूँ या फिर किसी भी एक बुक का जो मैंने पढ़ा है उसका मैं समरी लिख रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वही ऑर्डर, वही सीक्वेंस फॉलो करूँ जो ऑथर ने फॉलो किया है। मैं अपने ऑर्डर में, मैं अपने सीक्वेंस में उसको प्रेजेंट कर सकती हूँ और वो गलत भी नहीं होगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ समरी एंड अ प्रिसे। नाउ यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हमको ये देखना है कि एक अच्छा प्रिसे कैसे लिखना है। ओके, सो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रिसे, क्या करके हम अपने हमारे प्रिसे को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वालिटी इज दैट देयर शुड बी अ क्लैरिटी इन योर प्रिसे राइटिंग, देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी, यानी कि वट एवर यू आर ट्राइंग टू कन्वे थ्रू योर प्रिसे दैट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग फॉर द पर्सन हु इज रीडिंग इट। ओके, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार इंस्टेड ऑफ द प्रेसे मैं अगर टेक्स्ट ही पढ़ लेता तो वो ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए। नो, द पर्पज ऑफ द प्रेसे इज दैट यू हैव टू शॉर्टन अ लॉन्गर टेक्स्ट so as to make the reader easy to read it. Second quality is that objectivity. Objectivity matlab it should be unbiased and it should be purely a reflection of the original text. ओके, तो वट एवर हैज़ बीन गिवन इन द टेक्स्ट, मुझे अपना ओपिनियन नहीं देना है। आई हैव टू बी वेरी अनबायस्ड, जो ऑथर ने लिखा है मुझे सिर्फ अपने वर्ड्स में उसको प्रेजेंट करना है विदाउट बीइंग बायस्ड ओवर देयर। सो दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट, करेक्टनेस। करेक्टनेस, आई हैव टू बी करेक्ट इन माई प्रेसे वेदर इट इज फैक्ट वाइज और वेदर इट इज ग्रामेटिकली। ना देखो, इंग्लिश का पेपर है, प्रेसे राइटिंग है, तो ग्रामेटिकली करेक्ट होना ही चाहिए। यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। Then coherence. Coherence means a logical presentation of your ideas. So your ideas should be presented in a logical manner, in an interconnected manner. यानी कि जो आप सीक्वेंस में लिख रहे हो उस सीक्वेंस में एक फ्लो होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए when you are going from one idea to another idea. Next is completeness. Your prese should be complete in every form. Okay, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत important information उस original text में से छूट गया है या you have not written that in your प्रिसे। दिस शुड नॉट हैपन। एंड लास्टली कंसाइजनेस। आपको ये देखना है कि हम प्रिसे लिख रहे हैं यानी कि शॉर्टनिंग ऑफ अ लॉन्गर टेक्स्ट कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली योर पर्पस शुड बी फॉलोड, दैट इज योर प्रिसे शुड बी कंसाइज। योर प्रिसे शुड बी कंसाइज, इट मीन्स यू हैव टू राइट दैट प्रिसे इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। नेक्स्ट, प्रिसे राइटिंग का एक प्रोसीजर होता है। ओके, नाउ दिस इज जस्ट टू मेक इट सिंपलर फॉर यू कि अच्छा प्रिसे राइटिंग कैसे करें। ओके, एग्जाम में अगर एक पैराग्राफ आया है और उसका हमको प्रिसे लिखना है तो हाउ कैन वी राइट दैट प्रिसे फटाफट से। ओके, पहले तो उसको पढ़ना पड़ेगा, राइट। नाउ एग्जाम है, सीए एग्जाम्स है फाउंडेशन की, तो बहुत इजी वाला पैराग्राफ इंस्टीट्यूट देगा, इसकी संभावना बहुत कम है। देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी दैट द इंस्टीट्यूट विल आस्क यू अ वेरी सिंपल पैराग्राफ। नो, in fact there is more chance that this paragraph can be a little bit confusing, right? So step 1 आपको क्या करना है,
you have to read the passage and understand the text well in order to extract the main idea. तो intention क्या है इस particular passage का, what is the reason, what is the logic behind this particular passage, ये carefully आपको read करके understand करना है. Once you have done that, once you have understood what the passage is all about, second thing that you are going to do is you are going to underline the important terms and ideas in that particular preface. तो एक पेंसिल हाथ में रखना है and second time also you have to read it, and when second time you are reading it you have to underline the important words and important sentences in that particular original paragraph so that you cover all of those in your preface. थर्ड, पहली बार आपने पढ़ लिया, समझ लिया, ओके, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज डन इन द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप हमने अंडरलाइन भी कर लिया. नाउ थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, यू हैव टू थिंक ऑफ अ सूटेबल टाइटल फॉर दैट पर्टिकुलर पैसेज. अच्छा, मैंने पैसेज तो रीड कर लिया, नाउ इस पैसेज के लिए मैं सूटेबल टाइटल क्या दूं. ओके, यू हैव टू मेक श्योर कि एक अच्छा सा टाइटल लिखो आप उस पर्टिकुलर पैसेज के लिए. ओके, नेक्स्ट स्टेप 4 में यू हैव टू प्रिपेयर अ फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द प्रेसे. ओके, यानी कि एक पहला रफ ड्राफ्ट आपको प्रिपेयर करना है. बट खैर एग्जाम में तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप बैठ के एक रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर करो, बट समवेयर इन योर माइंड यू हैव टू नो कि अच्छा मुझे कैसा लिखना है ये पर्टिकुलर प्रेसे. ओके, एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर, सीक्वेंस तो आपको फॉलो करना ही है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू चेंज द सीक्वेंस. One important thing that you have to remember in preface writing, original text has to be reduced to 1/3 of its length. ओके, तो 1/3 ऑफ इट्स लेंथ में आपको जो प्रिसे है उसको कंप्लीट करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द ओरिजिनल पैराग्राफ, ओके, ओरिजिनल टेक्स्ट इज गिवन टू यू इन 3 पेजेस, तो आप उसका जो प्रिसे लिखोगे वो सिर्फ एक पेज में होना चाहिए प्रेफरेबली. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. And the last step that you are going to do is एक बार you are going to just reread your draft, और अगर कुछ और points आप cancel करके उसको shorten कर सकते हो तो वो आपको करना है. So these are the steps that you will follow in your preface writing. Next, ये तो हमने देख लिया कि प्रेसे लिखना कैसे है, उसका प्रोसीजर क्या है. ओके, नाउ देयर आर सम पॉइंट्स दैट आई वांट यू टू रिमेंबर अबाउट अ प्रेसे राइटिंग. पहला पॉइंट ये है, जैसे मैंने आपको कहा है, दैट द ओरिजिनल टेक्स्ट हैज टू बी रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज. सेकेंड, एक बार यू हैव आइडेंटिफाइड कि सेंट्रल आइडिया क्या है उस पर्टिकुलर पैसेज का, यू हैव टू ओमिट द अननेसेसरी डिटेल्स. जैसे कि इसके लिए मैंने कहा है कि फर्स्ट टाइम आपने रीड एंड अंडरस्टैंड किया है, नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ते हो यू हैव टू कीप अ पेंसिल इन योर हैंड एंड जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन करो, सो दैट यू विल इंक्लूड दोज सेंटेंसेज, दोज कीवर्ड्स इन योर प्रेसे, एंड बाकी जो अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स है उसको आप ओमिट करोगे. नेक्स्ट, यू हैव टू एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस. वर्डी एक्सप्रेशंस का मतलब है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज हो रहे हैं वैसे एक्सप्रेशंस को आपको अवॉइड करना है प्रेसे राइटिंग में. ओके, एग्जाम्पल में अगर इसका दूँ, सपोज इन अ पर्टिकुलर ओरिजिनल पैराग्राफ दे हैव गिवन यू समथिंग लाइक यू नो टेबल्स, चेयर्स, स्टूल्स, फर्नीचर, दिस दैट, ऑल दीज थिंग्स अगर आपको दिया है, ओके, तो ये सारे वर्ड्स हटा के यू विल जस्ट राइट वन वर्ड इन प्लेस ऑफ ऑल दीज, दैट इज फर्नीचर. राइट, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग समथिंग लाइक टेबल, चेयर, स्टूल, ऑल दीज थिंग्स, हम एक ही वर्ड उसको रिप्लेस कर सकते हैं, फर्नीचर. तो व्हाट आर वी डूइंग ओवर हियर, वी आर अवॉइडिंग बीइंग वेरी वर्डी. बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज करना हमको यहाँ पे अवॉइड करना है. इनफैक्ट बहुत ज़्यादा वर्ड्स के लिए एक वर्ड अगर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो देयर इज नथिंग लाइक इट. देन यू हैव टू अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन. कई बार ऐसा होता है कि अगर एक पैसेज हमको दिया गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे रिपीट होते जाती है, तो ये हमको वहाँ पे अवॉइड करना है. यू हैव टू कैंसिल दोज थिंग्स विच आर बीइंग रिपीटेड. उसके बाद योर प्रेसे शुड बी शॉर्ट एंड इट शुड हैव एन अप्रोप्रिएट टाइटल. तो एक बहुत छोटा सा टाइटल हमको हमारे प्रेसे को देना ज़रूरी है. देन इट शुड बी रिटन इन द वर्ड्स ऑफ प्रेसे राइटर. प्रेसे राइटर के वर्ड्स में हमको लिखना है, बहुत ज़्यादा उसके वर्ड्स से हेरा फेरी नहीं करनी है. यू शुड नॉट मूव फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड्स. ओके, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चलता है. फॉर एग्जाम्पल, वी आर नॉट बीइंग वेरी वर्डी, तो एक बहुत बड़ा लाइन है उसके लिए एक वर्ड अगर हमको याद आता है वोकैबुलरी से तो वी कैन ऑफकोर्स यूज दैट, बट यू हैव टू मेक श्योर कि ट्राई टू स्टिक टू द वर्ड ऑफ द ओरिजिनल ऑथर एज फार एज पॉसिबल. Then main ideas of the original text should be presented in the same order as in the preface.
तो सेम ऑर्डर में आपको सीक्वेंस यहाँ पे चेंज नहीं करना है। ओके, देन डू नॉट इंट्रोड्यूस आइडियाज ऑफ योर ओन इन द प्रिसे। जब हम प्रिसे लिखते हैं तब खुद के आइडियाज, खुद के कमेंट्स, खुद के रिकमेंडेशंस, क्रिटिसिज्म्स, ये सारी चीजें नहीं देनी है, बिकॉज उसको कोई स्कोप ही नहीं है, राइट। डू नॉट क्रिटिसाइज और चेंज द ऑथर्स आइडियाज। नाउ 3 थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिसे में। यू विल ऑलवेज यूज द थर्ड पर्सन, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। ओके, सीए फाउंडेशन का एक चैप्टर है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को ही हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो जब आप प्रिसे लिखोगे तो प्रिसे ऑलवेज हैज टू बी रिटन इन अ रिपोर्टेड स्पीच, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, ये सारा आप यूज करोगे प्रिसे में। आई ये यूज नहीं करोगे। अगर ऑथर लिख रहा है आई हैव डन अ पर्टिकुलर थिंग और आई इंटेंड टू डू सच अ थिंग, यू विल नॉट राइट आई, यू विल राइट इट फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू दैट ही इंटेंड्स टू डू सच अ थिंग। ये चीज आप लिखोगे आपके प्रिसे में। Then you will always use past tense while writing a prese. Prese writing always has to be in the past tense, राइट। किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू आप लिख रहे हो, राइट, जो ऑलरेडी वो कर चुका है, जो ऑलरेडी वो लिख चुका है, दैट इज द रीजन यू आर गोइंग टू राइट इट इन पास्ट टेंस। ये बहुत जरूरी है, याद रखना। एंड लास्ट वन, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा ओनली देन इट हैज टू बी रिटन इन द प्रेजेंट टेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ऐसी चीजें जो टाइम के साथ नहीं बदलती। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसी चीजें जो है इसको आप टेंसेज में चेंज नहीं करोगे। सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट अ प्रिसे राइटिंग। Okay, so I hope prese writing is clear to you. Okay, it is nothing but whatever has been given in the original paragraph, you have to write the summary of it, you have to write the gist of it, preferably in 1/3 of the length that has been given to you, okay, with a suitable title. You should not change the sequence of the original author. You should not put in your own recommendations, your own opinions or any criticism from your side. ओके, आपको लिखना है ये पर्टिकुलर प्रिसे पास्ट टेंस में एक्सेप्ट फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो ही उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ओके, सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर प्रिसे राइटिंग। ओके, बिफोर यू गो इन फॉर द मेन एग्जाम्स, इट इज एडवाइजेबल कि आप कुछ प्रिसे राइटिंग की प्रैक्टिस करके जाओ बिफोर गोइंग इन फॉर योर एग्जाम्स इन ऑर्डर टू गेन सम मोर कॉन्फिडेंस। ओके, इसके अलावा प्रिसे राइटिंग में अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन ऑलवेज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू गाइज फॉर योर पेशेंट हियरिंग। सी यू ऑल।